ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟ 1 ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਏਪੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਫ ਦੇ ਫਾਰਮ ਐਨ ਏਪੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਰਾਈਟ 3 ਮੋਰ ਟਰਮਸ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਮੋਰ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਹੋਰ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫਸਟ ਸਮ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ 2 4 8 2 4 8 ਤੇ 16। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ A1 ਹੁੰਦੀ ਆ, A2 ਹੁੰਦੀ ਆ, A3 ਹੁੰਦੀ ਆ, A4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਏਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਡੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ A2 A1। A2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ A1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਹੈ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2। ਇਹ 1 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। D ਬਰਾਬਰ A3 A2। A3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਹੈ, A2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਹੈ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਉਰੇ ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਰੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਰੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ this AP has not same difference। ठीक है, ਜਦੋਂ ਇਸ AP ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ this is not a perfect AP। मतलब कि ਇਹ AP नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਬੇਟੇ ਇਹ AP ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹੈ 2 5/2 3 7/2। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ A2 A1 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। A2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 5/2, A1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 2 ਦੇ ਬਾਈ 1 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 2 1 2 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ। 1 1 2 2 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A3 A2। A3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5/2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1। 2 ਤੇ 1 ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। 1 1 2 2 ਆ ਗਿਆ। 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ। 2 1 2 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1/2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ is equal to 1/2।
ठीक है जी। डिफरेंस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ परफेक्ट एपी, मतलब कि यह एक एपी हैगी है। जेकर बेटे यह एक एपी हैगी है तो इहदे आपां अगले तीन पद दा जिहड़े ओह पता करांगे, ठीक है। तो जिहड़े अगलियां टर्म्स आपां 3 टर्म्स पता करनी है, वो 3 टर्म्स आपां किवें पता करांगे, वो 3 टर्म्स लई मैं तुहानूं एक फार्मूला दस्सिया सीगा, ठीक है। उस तरीके दे नाल आपां 3 टर्म्स दा जिहड़ियां ओह पता करांगे। 1 2 3 4 अपने कोले 4 टर्म्स हैगियां, ਆਪਾਂ A5 पता करनी है, ठीक है। A5 का फार्मूला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा बई अपने कोले जो D आ गया, D भी तुसीं ध्यान च रखना है 1/2 आया सीगा, ठीक है। अपने कोले जो A5 आपां पता करनी है उनका फार्मूला हुंदा है A + 4D, ठीक है। तो A अपने कोले हैगी है 2 4, D की वैल्यू आ गई 1/2, 2 1 * 2 2 1 * 2 = 4, ये बन गया 2 + 2, ये बन गया 4। जो 5th टर्म आएगी वो आएगी 4, ठीक है। हुण आप 6th टर्म पता करांगे, 6th टर्म लिए A6 हो जाएगा A + 5D, A हैगी है 2 5, D की वैल्यू हैगी है 1/2, तो ये बन गया 2 + 5 इहदे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 बाई 1 हो गया। 2 ते 1 का एलसीएम लवांगे, 2 आ गया, 1 1 * 2 = 2, 2 आ गया, 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4 ਆ ਗਿਆ, 2 1 * 1 = 2, 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 5 ਆ ਗਿਆ, 5 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 9/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ 6 ਟਰਮ ਆਈ ਉਹ ਆਈ 9/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 7th ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। 7th टर्म ਲਈ A7 पता करांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ फार्मूला ਹੁੰਦਾ A + 6D ਦਾ। A ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 6, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਬੇਟੇ 1/2, 2 1 * 1 2 1 * 3 = 6 ਹੋ ਗਿਆ, 2 + 3 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 मतलब कि 7 आएगी वो आएगी 5। ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/1.2 3.2 5.2 7.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। पहले नंबर ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਏਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, A2 - A1। A2 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ -3.2, A1 ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ प्लस हो गया 1.2 हो गया, ठीक है। तो ये की हो गया प्लस माइनस माइनस। तो ये किवें घटेगा बेटे, ये इस तरीके दे नाल लिख लईदा हुंदा 1.2, 2 दे विचों 2 सबट्रैक्ट किया 1 आ गया, सॉरी 0 आ गया, ठीक है। 3 दे विचों 1 माइनस किया 2 आ गया। तो अपने कोले जो डिफरेंस आया वो आया दिस वन, ठीक है। हुण आपां देखांगे भी नैक्सट जो असीं सैकेंड टाइम करते हैं कि उसका डिफरेंस भी सेम है, A3 माइनस A2। A3 है बेटे वो अपने को है दिस वन माइनस 3.2, ठीक है। ये बन गया -5.2, माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2। तो आप घटा के देख लेंगे -5.2 प्लस 3.2, 2 दे विचों 2 सबट्रैक्ट किया 0 आ गया, 5 दे विचों 3 माइनस किया तो 2 आ गया। तो अपने को जो डिफरेंस आया कॉमन 2.0, यानी कि अपने को जो डिफरेंस आ रहा है कॉमन हाथ लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस -2.0, यानी कि सांझा अंतर -2.0। तो आपको एक तो उस चीज़ पता लग ही गई है बई जिहड़ा सांझा अंतर है वो कहना -2.0। तो जे सांझा अंतर साडे कोले 2.0 हैगा तो इस सम नूं असीं अगों करांगे। तो आपां अगों इस दियां
5th 6th ਤੇ 7th ਤਿੰਨੇ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ 5th ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ a5, ਜਿਹੜੀ a5 ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a plus 4d। ਇਹ ਆ ਗਈ ਬੇਟੇ 1.2 plus 4, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ this one, -1.2 प्लस माइनस हो गया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8.0। ਠੀਕ ਹੈ, 8.0 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9। ठीक है, तो अपने को जो टर्म आई वो आई -9.2। ठीक है, हुण आपां जिहड़ी ये आ गई 5th टर्म। हुण आपां 6th टर्म पता करांगे। 6th टर्म लई a6 a प्लस 5d। ए है जिहड़ी वो 1.2 है, प्लस 5 लग गया, -2.0 लग गई। ठीक है बेटे, तो ये बन गया 1.2 प्लस माइनस जो 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10.0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, 10.0 1.2 2 ਤੇ 0 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਤੇ 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ 6th ਟਰਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ 11.2 ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 7th ਟਰਮ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। 7th ਟਰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ a plus 6d। a है 1.2 प्लस 6, d की वैल्यू है -2.0। तो ये बन गया बेटे -1.2 प्लस माइनस बन गया 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12.0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। 2 ਤੇ 0 ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ -13.2। इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 7th टर्म है ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 5th टर्म है वो है -9.2, ਜਿਹੜੀ 6th टर्म है वो है -11.2, ਜਿਹੜੀ 7th टर्म है वो है -13.2। इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। जेकर तुहानू मेरा पढ़ाने का तरीका वधिया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आप एक एक सम कर रहे हैं तो जो बच्चों को किसी भी सम की कोई प्रॉब्लम ना आए। नैक्सट जो सम है 4th वाला -10 -6 -2, 4th -10 -6 -2 2। ठीक है, इस तरीके दे नाल तो आप पहले बेटे अंदर डी कटांगे। डी बराबर a2 माइनस a1 हो गया, -6 -10 हो गया, -6 माइनस प्लस हो गया 10 हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो सेकंड टर्म देख रहे हैं a3 -a2। a3 है जी -2 है, -6 है, -2 माइनस प्लस हो गया 6 बन गया, प्लस माइनस हो गया था 4। यानी कि डिफरेंस है जिहड़ा इत्थे मतलब कि जिहड़ा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू की आ गया 4 आ गया। सांझा अंतर कितना आ गया 4 आ गया। जे सांझा अंतर सानू पता लग गया तो बेटे आप इहदियां नैक्सट 3 टर्म्स है जिहड़ियां ओह पता करांगे। 3 टर्म्स लई वही फार्मूला a5 a प्लस 4d। ए है जी अपने को -10 है, 4 है, d की वैल्यू 4 है, ये बन गया -10 प्लस 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, प्लस -6 आ गया। ये आ गई 5th टर्म। 6th टर्म पता करांगे a प्लस 5d। ए है जो हो गया -10 प्लस 5 4 आ गया, ये बन गया -10 प्लस 5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 20, तो ये बन गया 10। ये बन गई 6th टर्म। जो 7th टर्म पता करेंगे तो वो बन जाएगा a प्लस 6d। a है -10 6 d की वैल्यू 4, -10 प्लस 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 24, प्लस माइनस तो ये आ गया 14। तो अपने को जो 5th टर्म आई वो आई
6 10 ਤੇ 14। इस तरीके दे नाल बेटा आप 3 टर्म्स है जिहड़ियां वो इस सम दियां पता कर दित्तियां। हुण आपां चलदे हां अपने नैक्सट सम दे उपर। नैक्सट सम दी अपने कोल रकम है बेटे 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 इस तरीके का नाम। तो आप देखते हैं बेटे इनका डिफरेंस है जो सेम है कि नहीं। डी आ गया, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 अपने को 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। तो आप आ 3 प्लस का यह माइनस का प्लस माइनस माइनस आ दोनों 3 कट देंगे अपने को आ जाएगा अंडर रूट 2। तो आप वन टाइम होर देखते हैं, ठीक है। डी बराबर a3 माइनस a2, a3 है जी अपने को बन गई 3 2 अंडर रूट 2। बाहर माइनस का निशान आ गया, अंदरली रकम है जी दो बारी दी है, तो इन्हों आप ब्रैकेट च लिखांगे। ये बन गया 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, जे बाहर माइनस का निशान हो तो अंदर का निशान चेंज हो जाता होंगे। तो तुम वेख रहे हो आ प्लस दी है, माइनस दी है, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों सीधी पा गए। 2 अंडर रूट 2 के विचों अंडर रूट 2 घटा देंगे तो अपने को आ जाएगा अंडर रूट 2। यानी कि अपने को जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने को अंडर रूट 2, जिन्होंने असीं कहने पंजाबी दे विच सांझा अंतर। सांझा अंतर अपने को अंडर रूट 2 आ गया। जेकर सांझा अंतर अपने को अंडर रूट 2 आ गया तो आप इस दियां मतलब कि यह एक AP हैगी है। जेकर AP हैगी है तो आप इनके अगलियां टर्म्स है जिहड़ियां 5th टर्म a5 a प्लस 4d, a है 3 4 d अपने को आ गया अंडर रूट 2 आ गया, ये बन गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक है जी, ये अपने को बन गई 5th सीरीज इनकी बन जाएगी। उस तो बाद a6 पता करांगे, a6 बन जाएगा a प्लस 5d बन जाएगा। ठीक है, ये अपने को आ गई 3 5 अंडर रूट 2 बन गया। तो ये अपने को बन गई 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये बन गई 6 टर्म बन गई। जो 7th टर्म पता करांगे तो वो बन जाएगी a प्लस 6d। ए है जी वो अपने को आ गई 3 6 d की वैल्यू अंडर रूट 2 भर देंगे, ये बन जाएगा 3 6 अंडर रूट 2। तो इस तरीके के बेटा आप 7th टर्म 6th टर्म तो जी 5th टर्म है वो इस सम की पता कर सकते हैं। उम्मीद करता कि तुम्हें मेरा यह तरीका पढ़ाने का वधिया लग्या होगा। जेकर तुम्हें मेरा यह पढ़ाने का तरीका वधिया लग्या तो प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो। हुण आप करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम की रकम है अपने को 0.2 6 सम 0.2 0.22 0.222। ठीक है, तो इस तरीके का 0.2222। ठीक है, इस तरीके के नाल है। तो हम आप करेंगे डी बराबर a2 माइनस a1 a2 0.22 माइनस a1 0.2। तो आप किवें घटावांगे 0.22 दे विचों 0.2 माइनस करांगे तो 2 तो सीधा ही नीचे आ जाएगा। 2 दे विचों 2 माइनस किया 2 दे विचों 2 माइनस किया 0 आ गया। तो अपने को जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 0.02। जेकर इनका सेकंड टाइम पता करांगे तो ये बन जाएगा a3 माइनस a2। a3 है जी अपने को आ गई 0.222, a2 है 0.22। जो आप करांगे 0.222 दे विचों 0.22 सबट्रैक्ट करांगे 2001। ठीक है, तो अपने को जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.002। तो तुम देखते हो कि जो साझा अंतर है वो सेम नहीं है। तो आप ये सम है जो अपना उरी खत्म हो जाएगा। ये आप लिख देंगे
कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, सो दैट दिस इज नॉट परफेक्ट एपी, मतलब कि यह एक एपी नहीं है। जो यह एक एपी ही नहीं है तो फिर आप ਜਿਹੜੀਆਂ अगलियां टर्म्स है वो पता नहीं करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपना 7th सम। इस डब्बी ਦੇ टोटल 15 सम हैगे आ, ठीक है, तो आप एक एक करके सारे ही करांगे। आप आगे 7th सम के उत्ते 7th सम की रकम हैगी आ 0 -4 -8 -4 -8 -12, ठीक है। इस तरीके के नाल हैगी आ। कहता आप डी पता करांगे A2 -A1, A2 -4 है, -0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 4 आ गया, ठीक है। डी पता करांगे A3 -A2, A3 है जी अपने को -8 है, -A2 -4 बन गया, ये बन गया -8, माइनस माइनस प्लस बन गया 4, प्लस माइनस माइनस तो -4। तो तुम देख रहे हो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इतने आप लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। तो जे साडे कोले कॉमन डिफरेंस है जो साझा अंतर है जो वो सेम आ जाए तो आप यह सम है जो अगों कटना होंगे। तो आप इनकी 5th टर्म पता करांगे जी होएगी A+4D। ए अपने को 0 4, इनकी वैल्यू आ गई -4, तो ये बन गया 0 प्लस माइनस -4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया माइनस का 16 आ गया। जो आप इनकी 6th टर्म पता करांगे तो A+5D बन जाएगा। ए बन गया अपने को 0 प्लस 5D की वैल्यू आ गई -4, ये बन गया 0 प्लस माइनस -5 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 20, तो अपने को 6th टर्म है जी वो आएगी 20। जेकर असी 7th टर्म पता करांगे तो वो बन जाएगी A+6D। ए अपने को 0 है, 6 है, D की वैल्यू -4 है, ये बन गया 6 प्लस माइनस -6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 24, तो अपने को आ गया माइनस का 24। तो अपने को जी 5th टर्म है वो आ गई -16, जी 6th टर्म है वो आ गया -20, जी 7th टर्म है वो -24, ठीक है। इस तरीके के बेटा यह सम है जोड़ा यह निकलना सीगा, ठीक है। हुण आप करते हैं इस डब्बी का नैक्सट सम। आप करते हैं इस डब्बी का 8th सम -1/2, ये सारियां -1/2 -1/2 -1/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला आप डी पता करांगे A2 -A1, A2 -1/2 -1/2, तो ये बन गया -1/2, माइनस में जो माइनस नाल मल्टीप्लाई किया प्लस बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। जे डी की आप A3 -A2 नाल वैल्यू पता करांगे तो A3 है जी वो भी -1/2 है, -1/2 है, तो ये बन गया -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, तो ये दोनों कट्टे गए तो डी बराबर 0 आ गया। यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 आ गया। कहते आप 5th टर्म पता करांगे जी होंगी है A+4D, तो ये अपने को हैगी -1/2 प्लस 4, जो डी आया वो आया 0, ठीक है। तो ये आ गया -1/4 प्लस जो 4 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे तो 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.4। जो आप 6th टर्म पता करांगे A बराबर 6, A+5D बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/2 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस आ गया 0, -1/5 प्लस 0 -1/2, ठीक है। जो 7th टर्म पता करांगे तो वो बन जाएगा A+6D, ठीक है। ए है जी 1/2 आ गया प्लस 6, कॉमन डिफरेंस 0 आ गया,
-1/2 प्लस 0 तो ये आ गया -1/2। तो अपने को जी फिफ्थ टर्म आएगी वो भी 1/2 आएगी, 6 भी 1/2 आएगी, 7th भी 1/2 आएगी। इस तरीके के नाल निकलना सी इस डब्बी का 8th सम। हुण आपां करते हैं इस डब्बी के 9th सम नूं। 9th सम की रकम है बेटे वो हैगी 1 3 9 सम 1 3 9 27। डी आप पता करांगे A2 माइनस A1। A2 है जी 3 है माइनस A1 अपने को हैगी है 1 है, ठीक है। इनका डिफरेंस आ गया 2। डी बराबर करांगे A3 माइनस A2। A3 है जी 9 है माइनस A2 है जी 3 है। 9 के विचों 3 माइनस करांगे 6 आ गया। तो आप लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन difference is not same so that this is not perfect AP, ठीक है। मतलब कि साझा अंतर है जोड़ा वो सेम नहीं है, साझा अंतर एक वर्गा नहीं है, ठीक है। इस करके इस एपी सीरीज में अगे हल नहीं किया जा सकता। हुण आप करते हैं इस डब्बी के 10th सम नूं। 10वां सवाल इस डब्बी के विच टोटल 15 सम हैगे है, टोटल 15 सम हैगे आ। तो आप आ गए हैं 10th सम ते। 10th सम है A2 A3 A4 A। जो 10th सम है वो है A2A 3A 4A। कहता डी पता करांगे बेटा ये बन जाएगा A2 माइनस A1 2A माइनस A 2A दे विचों A माइनस करता A आ गया। सेकंड टाइम करांगे A3 माइनस A2 ये बन गया 3 माइनस 2A ये बन गया A। जे तुसी थर्ड टाइम में भी पता करना हो तो A4 माइनस A3 ये बन गया A4 माइनस 3A इज इक्वल टू A। तो अपने को जो कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A आ गया, जिन्होंने असी साझा अंतर कहने हैं, साझा अंतर A आ गया। एंड आप फिफ्थ टर्म पता करांगे A प्लस 4D। A है जी वो बट अपने को A ही है 4D की वैल्यू A आ गई। A प्लस 4 नूं A ना मल्टीप्लाई किया 4A 4A तो एक A कितना बन गया 5A। ये फिफ्थ टर्म बन गई। जब तुम सिक्स टर्म पता करना चाहते हो तो A प्लस 5D बन जाएगा। A की वैल्यू तो A ही रहेगी, 5D की वैल्यू A आ गई। A प्लस 5A बन गया, 5A तो एक A 6A बन गया। इस तरीके के नाल जे तुसी सैवंथ टर्म पता करना चाहते हो तो A प्लस 6D का फार्मूला लगेगा। A ही रह गया, 6D की वैल्यू तुसी A पता की सी, A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A। तो अपने को ये बन गया 5A 6A 7A। इस तरीके के नाल बेटा आप नैक्सट 3 टर्म्स है जिहड़ियां वो पता कर सकते हैं। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये तरीके पसंद आ रहे होंगे। तरीका तो सेम ही है, वारी वारी आप इको तरह का सम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कई बारी वीक होंगे है तो उन्होंने थोड़ा जहा हर एक सम समझना औखा हो जाता है अपने आप। नैक्सट आप करते हैं बेटे 11th सम, ठीक है। तो ये बन गया अपने को A है बेटे, A है A स्क्वायर है, A स्क्वायर है, A3 है, A4 है। कहती आप D कटांगे बेटे, ये बन गया अपने को A2 माइनस A1, ये बन गया A स्क्वायर माइनस A। आप की करेंगे ये A है जी वो कॉमन कटांगे। जो ये कॉमन कटांगे तो अपने को रह जाएगा A, इतने 2A सी, एक A बाहर कट ली, अंदर हैगी 1A, तो ये बाहर आ गई सी, इतने रह गया 1। तो अपने को आह चीज़ बन जाएगी। उस तो बाद आप अगला करांगे, अगले सम के बन जाएगा अपने को A3 माइनस A2। A3 है जी बेटे A3 है माइनस A2 है। इहदे सानू A2 कॉमन कटना पएगा तो अपने को बचेगा दिस वन। तो तुम देख रहे हो इहदे जो साझा अंतर है वो सेम नहीं है। इत्थे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट
same, so that this is not a परफेक्ट AP, मतलब कि यह एक AP नहीं है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस है जिहड़ा वो सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस साडे कोले आ रहा इत्थे A -1 आ रहा, इत्थे A दी स्क्वायर A -1 आ रहा। ठीक है, तो हुण आपां चलते हैं अपने नैक्सट 12th सम दे उपर जल्दी जल्दी दे नाल। जिहड़ा अपने कोले 12वां सम है बेटे उस दी रकम है साडे कोले √2 √8 √18 √32। तो इहदे विच डी कड्डांगे बेटे। डी है जिहड़ी वो अपने कोले हुंदी है A2 - A1 हुंदी है। ये बन गया √8 - √2। तो जिहड़ा √8 हैगा बेटे इहदे आपां फैक्टर बना लेने हुंदे आ इस तरीके दे नाल। 2 ते गया 4 आ गया, 2 ते गया 2 आ गया, 2 ते गया 1 आ गया। इहदे विचों आह जिहड़ा 2 है ये अंदर आ जाएगा, आ जिहड़ा 2 है इहदा स्क्वायर रूट लग जाएगा, आ 2 है जिहड़ा ये बाहर आ जाएगा। तो अपने कोले बन गया 2 √2 - √2। 2 √2 दे विचों जो 1 √2 घटा दांगे तो अपने कोले √2 बच जाएगा। उस तो बाद 1 टाइम आपां होर करदे हां A3 - A2। A3 है जिहड़ी वो अपने कोले हैगी है 18, तो A2 है जिहड़ी वो अपने कोले हैगी है 8। ठीक है, तो हुण आपां 8 दे अपने कोले कितने पे है आप 18 दे बना के देखते हैं 18। ठीक है, ए गया 2 ते 9 आ गया, 3 ते गया 3 आ गया, 3 ते गया 1 आ गया। तो 2 सिंगल आया बेटे 2 2 रह जाएगा। आ जिहड़ा 1 3 आया इहदा स्क्वायर रूट बन जाएगा, आ जिहड़ा 3 आया इहदा दिस वन बन जाएगा। तो अपने कोले बन गया 3 √2 माइनस इहदा आपां कढ ही लिया सीगा 2 √2। 3 √2 दे विचों 2 √2 घटा दांगे तो अपने कोले आ जाएगा √2। इहदा मतलब जिहड़ा कॉमन डिफरेंस हैगा वो इस सम दा सेम है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2। तो आप 5th टर्म पता करांगे A + 4D। A है जी अपने को √2 है, 4 है, तो अपने को आ गया √2। तो ये बन गया √2 + 4 √2। ये आ गया 4 √2 दे विच आपां √2 ऐड कर देंगे तो अपने को बन गया 5 √2। जो आप इहनूं सॉर्ट आउट करांगे तो अपने को बन जाएगा 5 × 5 √ दा × 2। तो ये कितना बन गया अपने को 5 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई किया 20, 5 25 नूं इहदे मल्टीप्लाई किया तो 50। ठीक है, हुण आपां इसदी करांगे 6 टर्म पता A + 6D A + 5D। A है जी अपने को आ गई √2 + 5 √2। तो ये बन गया √2 + 5 √2। तो 5 ते 1 ऐड करता तो बन गया 6 √2। तो जो आप इन्हें सॉर्ट आउट करांगे तो अपने को बन जाएगा 6 × 6 × 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया 6 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई किया 36, 36 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 72। ऐसे तरीके दे नाल आपां इहदी 7th टर्म है जिहड़ी ओह भी पता करांगे। 7th टर्म दे विच बन जाएगा A7 A + 6D। ठीक है, तो ये है अपने को √2 6D की वैल्यू आ गई √2। ये बन गया √2 प्लस ये बन गया 6 √2। 6 और 1 कितना बन गया 7 √2। जो इन्हू सॉर्ट आउट करेंगे तो बन जाएगा 7 × 7 × 2। तो ये कितना बन गया 7 नूं 7 नाल मल्टीप्लाई किया 49 बन गया। 49 नूं जो आप 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे 9 × 1 = 2 = 8 1 4 × 1 = 2 = 8 9। तो अपने को आ रकम बन गई। तो आप इतने लिख देंगे जो 5th टर्म है वो आएगी 15, जो 6th टर्म है वो आएगी 72, जी 7th टर्म है वो आएगी 98। तो इस तरीके के यह सम है जोड़ा होना सीगा 12th। हुण आप चलते हैं अपने 13th सम दे वल। उम्मीद करता कि तुहानू यह तरीका पढ़ाने का पसंद आया होगा। बहुत ही वधिया तरीका है, ठीक है, सौखा तरीका है, बिल्कुल ही आसान तरीका हैगा। हुण आप चलते हैं अपने 13 सम के वाल। 13 सम की जी अपने को रकम हैगी है वो हैगी है बेटे √3 √6 √9 ते √12। ठीक है, कहता आप डी पता करेंगे जी।
डी बराबर अपने को बन गया A2 माइनस A1, A2 है जी 6 आ गया माइनस √3 आ गया। जो 6 जोड़ा हैगा ठीक है, तो ये मतलब कि हुण इनका कुछ निकलना ही नहीं गा, √6 माइनस √3 आ गया। इनके विचों मतलब कि आप माइनस नहीं कर सकते। हुण आप जे डी कढ़ांगे तो A3 माइनस A2 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा √9, ये बन जाएगा √9 माइनस √6। तो यही चीज़ भी है जी इसनों किसी भी तरीके दे नाल हल नहीं किया जा सकता। तो आप लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP, मतलब कि यह एक AP नहीं है। तो जे AP नहीं है तो आप टर्म्स भी है जड़ियाँ वो पता नहीं करनिया। हुण आप चलते हैं अपने सैकेंड लास्ट सम दे वल, वो 14th सम। 14th सम दे विच हैगी रकम बेटे 1 दी स्क्वायर, 2 3 दी स्क्वायर, 5 दी स्क्वायर ते 7 दी स्क्वायर। आप की पहले इस रकम को सॉर्ट आउट कर लांगे। 1 दी स्क्वायर तो 1 ही होएगा, 3 दी स्क्वायर 9 होएगा, 5 दी स्क्वायर 25 होएगा, 7 दी स्क्वायर 49 होएगा। तो आप डी कट के देखते हैं जी, डी है जी वो A2 माइनस A1 बनेगी, यानी कि 9 माइनस 1 8 आ गया। डी बराबर A3 माइनस A2 बनेगा, A3 25 बन गया माइनस 9, 25 के विचों 9 माइनस करांगे तो 16 बन गया। तुसीं देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जिहड़ा हैगा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट AP, मतलब कि यह एक AP नहीं है, ठीक है जी। आप करते हैं अपना लास्ट सम एस कबी का। थोड़ी जी क्लास है जी वड्डी होगी। लास्ट सम है अपने को 1 दी पावर 2, 5 दी पावर 2, 7 दी पावर 2, 73। तो करते हैं आप 1 आ गया, 5 दी पावर 2 25, 7 दी 5 49, 73, ठीक है। अंदर डी कटांगे A2 माइनस A 25 माइनस 1, 25 के विचों 1 निकल गया, 24 आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर करांगे A3 माइनस A2 49 माइनस 25 24, यानी कि अपने को जो साझा अंतर आ गया, ठीक है, वो कितना आ गया 24। तो आप इनकी 5th टर्म पता करेंगे A प्लस 4D। ये बन गया A बेटे, ये बन गया 1 प्लस 4, D की वैल्यू आ गई 24। 1 प्लस 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 16, 1 आ गया, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 9, तो ये बन गया 97, यानी कि जी 5th टर्म है वो आएगी 97 आएगी। हम आप 6th टर्म पता करेंगे। 6th टर्म के लिए आप करेंगे A प्लस 5D करेंगे। ये बन गया 1 प्लस 5D की वैल्यू आ गई 24। 1 प्लस 5 1 सा 4 इज इक्वल टू 0, 20 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 10, ठीक है। तो ये बन गया 121। जेकर आप इनकी 7th टर्म पता करेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 6D। 1 प्लस 6 24, 1 प्लस 6 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 24 हो गया जी, 4 हो गया, 2 कैरी आ गया, 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 12, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 जोड़े this one, तो ये बन गया 145। तो अपने को आ गई 7th टर्म 145। इस तरीके के बेटा ये सम है जोड़े निकलना सीगा। उम्मीद करता कि तुहानू मेरा यह पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। जेकर तुहानू मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बैल आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि मेरी आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो है जी वो तुहानू मिल सके। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। सेफ होम, स्टे होम।